फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सबसे पहले लिए चलते हैं। This regard and these efforts have been derailed. The Prime Minister did inform President Xi Jinping that Pakistan needs to create an atmosphere free of terrorism, and that at this stage we did not see this as happening as yet, and that therefore we expect Pakistan to take concrete action on the issues that India has proposed, in the areas of concern that we have flagged to Pakistan, that Pakistan should take concrete action in this regard. Ashish. Sir, I'm Ashish from NewsX and India News. It appears that the Pakistan point was raised by the Chinese Premier Xi Jinping. I just wanted a confirmation on that, or it was mutually agreed topic before the two leaders bilateral. And second is any areas of specification for the November bilateral informal summit that have been decided, the larger areas? Both leaders are free to raise issues of the discussion. So I think the point I'm making is that the position that we conveyed is what I have just said. As of now, there is no decision on date or on venue of the informal summit. The important point here was a reaffirmation after the formation of the government that he will visit India this year, that we should begin intensive preparations, and that the leaders have directed both sides to begin that process. Obviously, this also means the discussion of the logistics aspects of the visit. I'll take one last question because we have to leave now. I just got a message. Athar. Good evening, Foreign Secretary. Was at any point during the discussion tariffs by the Trump administration on China, and certainly we're also affected by certain tariffs there, was that discussed at all? And also tomorrow, Dr. Hassan Rouhani is going to meet the Prime Minister for a bit. What's going to be on the agenda there? So there was a general discussion on the global situation, and obviously in that context, the issue has come up of the China-US relationship, but there was no time for a very detailed discussion in these matters. The focus of this bilateral meeting has been to reaffirm that in the 5-year term of this government, which coincidentally also closely matches the term of President Xi Jinping in his second term as president, the two countries have a historic opportunity. और चलिए रुख करते हैं दक्कन की खबरों का, जहां पर मोदी कैबिनेट की जानिब से 3 तलाक बिल को मंजूरी देने के लिए साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जानती है कि राज्यसभा में मौजूदा मुतनाज़ा बिल पास नहीं हो पाएगा, लेकिन सियासी मफाद के लिए हुकूमत लगातार मुस्लिम मसाइल को उलझा रही है। साबिक अक़लियत वज़ीर ने दावा किया है कि अगर किसी तरह से ये बिल पार्लियामेंट में पास हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा, लेकिन मोदी हुकूमत का मकसद अवामी फलाह नहीं बल्कि मजहबी तफरक़ात बढ़ाना रह गया है। वाज़ेह रहे कि दोबारा से इक़्तिदार में आने के बाद मोदी काबीना ने 3 तलाक बिल को एक बार फिर से मंजूरी दी है और जिसके आने वाले इजलास में पेश होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कुदरती आफत का दर्द झेल रहे कर्नाटक में अराजी तहवील भी बड़ी मुद्दा बनता जा रहा है, जहां पर अंबानी बरादरान को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस और जेडीएस की मुश्तरका हुकूमत पर जिंदल ग्रुप को फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। बीजेपी का कहना है कि रियासती हुकूमत जरूरत से ज्यादा जमीन कम कीमत पर बड़े ताजिरों को दे रही है। इसी मामले को लेकर पार्टी ने एक बड़ा मुजाहरा किया है। इस मौके पर उन्होंने रियासत में माफिया राज चलाने का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडरान ने कहा है कि बीजेपी के मुकाबले लगातार इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के मुतालबे पर हुकूमत बैकफुट पर जरूर आई है, लेकिन इसे पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। वाज़ेह है कि रियासती काबीना ने जिंदल ग्रुप को 3600 एकड़ जमीन खनन के लिए लीज पर देने का फैसला किया है, जिसकी रियासतगीर पैमाने पर मुखालिफत शुरू हो गई है। यह 2 लाख आसपास के लिए भेज रहा है इस राज्य सरकार ने, 100 टाइम्स लेस देन अ मार्केट वैल्यू। ये ओपन एंड शट स्कैम है और ये कर्नाटक में जनता दल और कांग्रेस का ये जो गठबंधन की सरकार चल रही है, इस सरकार का बहुत बड़ा क्रोनी कैपिटलिज्म का एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है कि इस कर्नाटक में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस पूरा खत्म हो चुका है और माफिया के जैसे सरकार इधर काम कर रही है। द प्रेशर ऑफ द बीजेपी और जनता की आक्रोश ने ये डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए एक रीजन है, पर वी विल फाइट अंटिल द डिसीजन इज रिकंसिडर्ड एंड अंटिल दीज स्कैम्स आर
allowed for investigation by the CBI. आम इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद AIADMK में लीडरशिप की जंग शुरू हो गई है और जिसके मद्देनजर अपोजिशन ने CM में से इस्तीफे का मुतालबा किया है। DMK का क्या कहना है कि हुक्मरान जमात के आपसी टकराव की सजा आवाम को नहीं दी जा सकती और इसलिए रियासत में नए असेंबली इंतखाबात कराए जाने चाहिए। हालांकि रियासती वजीर D जयकुमार ने इसे किसी तरह की बात से इनकार कर दिया है और साथ ही क़यादत तनाज़े के बीच हुई AIADMK की मीटिंग को रियासत में पानी पर चर्चा होने की बात भी कही जा रही है, जबकि DMK खुले आम रियासत में सियासी बहरान होने की बात कह रहा है। That all, what are all the views from the other side, no? That are only gossiping. So that all are gossiping, no, not at all an issue, no problem. Status quo is maintained, okay? The election is a routine meeting, no problem. Sir, do you think tying up with BJP was a mistake as far as AIADMK is concerned? That is not at all issue, ma. उधर आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस की तारीखी जीत के बाद असेंबली इजलास शुरू हो गया है। कल 9 मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाया गया और जिसके बाद स्पीकर के इंतखाब कराए गए। इससे पहले बीजेपी के कौमी तर्जुमान की CM जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात से सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। हालांकि YSR ने इसे रस्मी मुलाकात करार दिया है। वाज़ेह है कि आम इंतखाबात के साथ रियासत में हुए असेंबली इंतखाबात में YSR ने तारीखी फतह हासिल की है और जिसके बाद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 5 तबकों से डिप्टी CM बनाकर एक नए ट्रेंड का आगाज किया है। मुल्क के लिए मुसीबत बना वायु तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब ये गुजरात के साहिली इलाकों के पास से गुजरेगा, लेकिन असर बरकरार रहने की बात कही जा रही है। वायु तूफान से पहले ही केरल के साहिली इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। समंदर में उठ रही ऊंची लहरों की वजह से आसपास के घर तबाह हो गए हैं। हालांकि मकामी इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मकामी बाशिंदों का कहना है कि ये तो उनका हर साल का मामूल है, जबकि मकामी इंतजामिया ने तबाही का दौरा कर नुकसान की भरपाई और नए घर बनाने की यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि वायु तूफान की वजह से कई रियासतों में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए बढ़ते आगे। तमिलनाडु के मदुरई में ट्रेन की बोगियों में तालीम दी जा रही है। हालांकि यह हकीकत नहीं, महज बच्चों के अपने जानिब माइल करने का एक तरीका है, जिससे छोटे बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हुकूमत और इंतजामिया बच्चों की तालीम के लिए क्या क्या नहीं करते। इस वक्त बच्चों को स्कूल की जानिब राग़िब करने के लिए तमाम स्कीमात चल रही हैं। इस बीच तमिलनाडु के मदुरई में ट्रेन के नमूने का क्लासरूम बनाया गया, जिससे बाहर से देखने पर ट्रेन के सफर का एहसास होता है। स्कूल के दरवाजे को जहां रेलवे स्टेशन की शक्ल दी गई है, स्कूल की बिल्डिंग की शुरुआत रेल के इंजन से करने की कोशिश है। इसी तरह स्कूल के कमरों को रेलवे बोगियों की शक्ल दी गई है, जिससे मुतवज्जो होकर बच्चे स्कूल आते हैं, खुशी खुशी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। जहां से इससे तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है, वहीं उनके गार्जियन इंतजामिया की कोशिशों से काफी खुश हैं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। गरीबी और बेरोजगारी से परेशान नौजवानों का खलीजी ममालिक में खुलेआम इस्तेहाल हो रहा है और कुछ मामलों में हुकूमत मदद भी कर रही है। बावजूद इसके एजेंट जमकर मनमानी कर रहे हैं और जिसका नतीजा यह है कि आज भी कई नौजवान गैर मुल्कों में कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया हैदराबाद के मोइनुद्दीन का है, जिसे मकामी एजेंटों ने रियाद के किसी कंपनी में काम करने की बात कहकर भेजा था, लेकिन वहां पर उससे घरेलू काम कराया जा रहा है। इसकी इत्तला उसके अहले खाना को मिलने के बाद मुतासिर का वालिदा जो है वो परेशान है और रियासती पुलिस के साथ वो मदद के हर रास्ते को तलाश रही है ताकि उनका बेटा वतन वापस आ जाए, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। मजबूर होकर उन्होंने वजारत खारजा से अपील की है। तमिलनाडु के मजहबी शहर रामेश्वरम में आज रावण वध तकरीब मनाया जा रहा है, जहां पर कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने रैली निकाली और भगवान राम के कामों को याद किया। एक जुलूस के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर से सजा हुआ रथ था, जहां पर तीर को रावण के पुतले पर चलाकर उसे आग के हवाले किया गया। अकीदतमंदों का कहना है कि आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था।
हैदराबाद में ताइक्वांडो चैंपियनशिप के दूसरे एडिशन का शानदार आगाज हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर जहां लीडरान ने रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की, तो वहीं इंतजामिया ने इंग्लैंड के बाद तेलंगाना में हुए चैंपियनशिप को बड़ी हुसूलियात करार दिया। चैंपियनशिप में शिरकत करने पहुंचे खिलाड़ियों ने मकामी इंतजामिया की तारीफ करते हुए इसे खिलाड़ियों में नए जोश पैदा करने का अमल बताया।